کراچی میں نتائج سے غیر مطمئن اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے طلبہ کے تحفظات کے باعث انٹر بورڈ نے اسکروٹنی سے غیر مطمئن طلبہ اور طالبات کو کاپیز دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور چیئرمین انٹر بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ بورڈ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے مطابق منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مافیا طلبہ اور طالبات کو بورڈ کے خلاف احتجاج پر اکسا رہا ہے۔ بورڈ کے نام سے متعدد جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی سرگرم ہے اس سلسلے میں، اور جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ایک بار پھر FIA سائبر کرائم کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ تمام معاملات پر طلبہ کا موقف کیا ہے اور اتھارٹیز کا موقف کیا ہے، یہ ہم نے آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود زہرا حنیف صاحبہ جو طلبہ ہیں وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم زہرا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اور شرف علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جو کہ قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ ہے، شرف علی صاحب اور میٹرک کے یہ چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ شرف علی شاہ صاحب، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ زہرا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی کتنے مارکس آئے تھے، کیا پرسنٹیج آئی تھی میٹرک میں، اور ابھی انٹر میں کیا ہوا ہے؟ میری میٹرک میں 90% تھی اور انٹر میں 76% ہو گئی ہے۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ نہیں، میں ایم کر رہی تھی 90% کا۔ میں نے جو انٹر میں محنت کی ہے وہ ڈبل کی ہے، ایفرٹس ڈبل لگایا میٹرک سے، کیونکہ جیسے کہ چیئرمین صاحب نے بولا تھا کہ انٹر کا جو لیول ہوتا ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتایا تھا کہ جو انٹر کا پیپر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی لیول اس کی زیادہ ہوتی ہے نا، تو میٹرک سے تھوڑا زیادہ لیول اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس حساب سے محنت بھی کی تھی، ویسا ہمیں نمبر ملنا بھی چاہیے تھا، بالکل ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، لیکن ایک دم سے ڈراسٹک چینج آیا، میں خود حیران ہو گئی۔ 76 پاسبل ہی نہیں ہے میم۔ اچھا، اگر ڈراسٹک نہ آئے تو ویسے چینج تو آتا ہے نا، تھوڑا ہلکا تھوڑا بہت آتا ہے۔ چلے یعنی کتنے پرسنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ 89-88 کا آپ فرق ایکسپیکٹ کر اور رہی تھی۔ زہرا، یہ صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے یا اور بھی بہت سارے طلبہ ہیں؟ نہیں میم، بہت سارے بچے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں میرے ایون کالج میں، سینٹر میں بہت سارے ایسے بچے جو پڑھنے والے نظروں میں تھے، جو پڑھنے والے بچے ہیں، اسٹوڈیوز بچے۔ یس، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ایک اچھی طرح 80s میں لے جائیں گے، ان کو 60s 70s میں پرسنٹیج۔ اور آپ کی تیاری کیسی تھی اس ایئر؟ آپ کے جتنے بھی فرینڈس تھے، جتنے بھی کالجز تھے، ان کی بھی تیاری کیسی تھی؟ پیپرز آسان تھے اس دفعہ؟ پیپر تو آتا ہے جیسے آتا ہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے، اس کی کیا تیاری کتنی ہے۔ تو اگر میری تیاری کی بات کی جائے تو میں نے آلموسٹ 1 منتھ پہلے پیپر سے، بورڈ ایگزام سے پہلے اپنی پورے سلیبس کی تیاری کمپلیٹ کر لی تھی۔ اور پھر مجھے یہ لگا کہ 9 میں جیسے میرے 10 میں جو میرے مارکس آئے 90%، میں نے سوچا کہ میں اس سے زیادہ بھی امپروو کر سکتی ہوں، تو میں نے رائٹنگ پہ اپنی یعنی کیلیگرافی وغیرہ پہ تھوڑا فوکس کیا تاکہ میں اپنی رائٹنگ انہانس کروں تھوڑا سا پیپر میں، اور پریزنٹیبل ہوتا ہے۔ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ بننا چاہتی ہیں؟ اور ایک ایم ہوتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے پاس، اس کو ایک یہ ذرا آواز بند کر دیں، آواز نہیں آ رہی زہرا کی ہمیں۔ جی، اس کو ایک اچھے نمبر گین کرنے، تبھی تو جا کے وہ ایپٹیٹیوڈ میں اگر وہ ٹاپ کرے گا تو بیلنس ہوگا، تبھی انٹر کی پرسنٹیج اور ایپٹیٹیوڈ کا جو اس کا نمبر ہے وہ گین کر رہا ہے اس میں بیلنس ہوگا، تبھی تو اس کو ایک ذرا یہ جو ہے نا آپ کی لہجے میں بھی یہ تشویش وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے محنت۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کے یعنی کیا چاہتی ہیں، کیسے مطمئن ہو جائیں گے طلبہ و طالبات، کیا کیا جائے ایسا؟ مجھے تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا، جس طرح کا ریزلٹ آیا بچے بالکل بے چین ہوئے۔ نہیں، پیپرز آپ چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ میں تو چیئرمین صاحب سے ہی بولنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جیسے کہ اگر وہ بول رہے ہیں ان کے حساب سے کہ بچوں نے محنت نہیں کی، بچے کالج نہیں جاتے ہیں، پیپر میں کچھ نہیں، وہ تو ابھی بات کریں گے ان سے تو پتہ چلے گا، لیکن آپ کیا کہتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ اگر اب وہ ہمیں 1 ڈے نوٹس دے کے بھی پیپر دینا چاہے نا، پیپر لے لیں ہم سے واپسی، بھلے سے ہم دینے کو تیار ہیں، دوبارہ سے آپ یہ ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے لیے جو بچہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ ملنا چاہیے۔ بالکل۔ شرف علی شاہ صاحب، چیئرمین انٹر بورڈ اینڈ میٹرک، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرف علی شاہ صاحب، یہ بتائیے، آپ نے سنا زہرا کی کنسرنز کیا ہیں، اس میں آگے جا کے کیا ہم دیکھتے ہیں، اس پہ کیسے سیٹسفیکشن مل سکتی ہے طلباء کو بھی اور سسٹم کو بھی؟ ایکچولی یہ 90% مارکس نہیں ملتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں، اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹینڈرڈ میں اور میٹریکولیشن ایگزام اسٹینڈرڈ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور کیونکہ بچے جو ہے وہاں پہ زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ پروفیسرس ہوتے ہیں جن کی بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسکول کے ٹیچرس کا اسٹینڈرڈ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، اور کالج کے پروفیسرس جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوشچن کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ بچے جواب دیں، اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ایسل و بیسٹ جواب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو سوال پوچھا جائے اس کے ارد گرد جواب دے دیتے ہیں،
तो उस वजह से जो है वो मार्किंग जो है वो स्कूल के स्टैंडर्ड में और कॉलेज के प्रोफेसर्स के स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है। ठीक है। तो 90s में तो मार्क्स मिलते ही नहीं, कॉलेज में स्कूल्स में मिलते होंगे ज़रूर। Right. तो अच्छा, ये बच्चों का शफात जो है अली- वो एक एप्रीहेंशन है। नहीं शाह अगर- साहब एक चीज और, जी। ये प्री ऑक्यूपाइड माइंड से ना कि एक आप समझ रहे हैं कि ये शायद तलबा की तरफ से ज्यादती की जा रही है, कोई इंक्वायरी ऐसी होगी कि ये भी इनका भी मुतमईन होना जरूरी है ना, देखें मुल्क का मुस्तकबिल है ये, तो उस सिलसिले में आप इकदाम क्या कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक बताइए। हमने कि 11 रुकनी जो है वो सीनियर प्रोफेसर्स और जो हेड एग्जामिनर्स हैं और वेल रेपुटेड कराची में हैं और जिनका जो है वो 30 ईयर्स 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है और बोर्ड एग्जामिनर जो है असेसमेंट का भी उनका वसी तजर्बा है, उनकी एक कमेटी बनाई हुई है ताकि जो है वो जो बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म जमा कराते हैं कम से नानसा भी हुई है तो उसको वो जो है रीअसेस कर रहे हैं पेपर्स को। वो जब 21 दिन के जो है वो टाइम दिया हुआ है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट जमा कराएंगे, आई मीन इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगी और बच्चों को रिजल्ट बताया जाएगा। अगर उसके बावजूद अगर कोई बच्चा जो है वो गैर मुतमिन होता है तो हमने उसके लिए एक अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि हम उनको कॉपी दिखाएंगे और जो है वो भले अपना ट्यूशन टीचर, अपना कोचिंग टीचर जो भी अपना साथ लाए लेकिन सब्जेक्ट का हो, ताकि हम बच्चे को मुतमिन कर सकें, बता सकेंगे बेटा आपने ये चीज़ें नहीं लिखी, इसके जवाब ये होता है। तो इस तरह से जो हम मुतमिन कर सकते हैं और कोई वे आउट नहीं है। राइट। अब ज़हरा, आप मुतमईन होंगी अगर आपको आपका पेपर दिखाया जाए और ये दिखाया जाए, आपके सामने रिजल्ट होगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं या क्या अच्छी कॉम्पोजिशंस लिखी हैं? जी ऑब्वियसली मैं मुतमईन हो जाऊंगी अगर मेरा पेपर मेरे सामने खोल के दिखा रहे हैं। मुझे अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा, यानी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि 70 से परसेंटेज में ही चली जाए। तो अगर मेरा पेपर मेरे सामने मुझे दिखा दिया जाए तब मुझे यकीन आ जाएगा। यानी अगर चेकिंग से, क्योंकि इससे पहले एक प्रोसेस ये है कि चेकिंग होगी, एक पूरी टीम बैठी हुई है और वो फिर दोबारा से पेपर को देखेंगे, असेस करेंगे और वो मार्क्स देंगे, तो वो भी आप कह रही है आपको पेपर दिखाया जाए अपना? जी मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरा पेपर ऑलरेडी इंटैक्ट है या फिर मेरा मिसप्लेस हो गया है, क्या हुआ है मेरा। मुझे यानी कि केमिस्ट्री में जो मेरे साथ केस आया है, मुझे अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे 30 नंबर आ कितने मार्क्स आए? 30 नंबर केमिस्ट्री में। 30 आउट ऑफ 85 रियली मुझे पास कर दिया केमिस्ट्री में। मैं और मैट्रिक में आपके कितने थे? मेरे मैट्रिक में 95% रहे हैं मार्क्स। 95% जी केमिस्ट्री में। शहर साहब, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 30 एंड 90, इट्स लाइक 60% का जंप है इसमें। क्या कहेंगे? इस तरह तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ट्रस्ट लेवल उनका जो है वो डिमोरलाइज होंगे, होपलेस हो रहे हैं। आपको बताऊं, असेसमेंट का प्रोसेस ये होता है कि पहले एग्जामिनर एक असेसमेंट करता है, फिर डिप्टी हेड जो लेक्चरर होता है, उसके बाद जो है वो डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद हेड एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है जो प्रोफेसर होता है, तो उसके बाद एक चेकर होता है। तो कॉपी जो एक बच्चे की हर मरहल से गुजरती है, उसके बाद हर एक बंदा अपनी साइन करता है, उसके बाद लेजर में मार्क चढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है अगर एक बंदे ने कोई जो है कोताही की है तो दूसरा उसको चेक करता है, डिप्टी एग्जामिनर, बाद हेड एग्जामिनर उसको चेक करता है, उसके बाद मैंने कहा ये 3 बंदों के चेक करने के लिए बाद प्रोसेस पूरा होता है। ये भी बताइए। हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं। जी फरमाइए। हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे से जस्टिफिकेशन हो, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक सब्जेक्ट में वो समझता है कि मुझसे जस्टिफिकेशन नहीं हुई है तो वो स्क्रूटनी फॉर्म। अच्छा, आपको ये बात यानी कैसी क्या लग रही है कि ये एक मुतालबा, क्योंकि जो आपने प्रोसेस बताया कि एक के बाद एक, उसके बाद रीचेक किया जाता है और एक पूरी टीम होती है, तो यानी आपके जहन में ये बात नहीं समझ आ रही, आप ये कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता ऐसा? 1-2 लोगों के साथ तो हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है, ये समझ रहे हैं आप? नहीं, ये अगर हुआ है तो उसका अजाला भी हो रहा है ना। जो रात दिन वो प्रोफेसर काम कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी कॉपी को रीअसेस किया जा रहा है। तीन जो है सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वो उसको दोबारा देख रहे हैं। नहीं, आपके सिस्टम में यानी होना मुमकिन है, ये हो सकता है, यानी कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ये होना मुमकिन है, क्योंकि जो आपने सिस्टम बताया ना सर, उसमें तो इसकी लाइक्लीहुड बड़ी कम है, 1% भी नहीं। अब 90% था तो अभी जो है मेरा 70% है, तो 90% के जो परसेंट वाला जो है वो एडमिशन के लिए 70, 67, 68 तक भी जो है वो होती है, मतलब एडमिशन। तो वो कितना बड़ा जो है वो इशू नहीं है, लाजमी नहीं है,
तो 90s में तो आते ही नहीं, हमारे जो पोजीशन होल्डर भी नहीं होते इधर। तो सर- अगर इस बच्ची को से या किसी को से भी जी। अगर है कोई जो है किसी को रिजर्वेशन या कोई इस किस्म की एंग्जाइटी, तो उस तरह का कुछ सिस्टम है जो हमारा रूल्स है, उसमें है उसकी रेमेडी। अच्छा। आप जो है अप्लाई करें, हमारा हेड एग्जामिनर देखेंगे उसको, उसके बाद उनकी रिजल्ट आएगा कि जी हाँ इसमें जी कुछ किया जा सकता है नहीं। जी, जी, जी। अगर उसके बाद भी बच्चा मुतमन नहीं होता है तो वो आप आप पेपर दिखा सकते हैं। शाह साहब ये भी बताइए, मतलब हमारे ज़माने में भी हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं, इंटर किया है, मैट्रिक से हमने बोर्ड पे किया है। हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें होती ही नहीं थी, जो रिज़ल्ट था वो शफाफ था। क्या इतने सालों में क्या चेंज आया है एजुकेशन सिस्टम में कि ये साल आ साल हम देख रहे हैं कि बच्चे, तलबा, चाहे वो MD कैट हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंटर बोर्ड हो, ये सारी अपहील्ड परेशानियां आजकल 3 सालों में हम देख रहे हैं। क्या चेंज आया है सिस्टम में? एक्चुअली एक तो सिलेबस जो है वो रिवाइज हुआ है, जैसे हम कैरिकुलम कहते हैं, कैरिकुलम रिवाइज हुआ है। पहले हमेशा कहा जाता थी घटा पिटा जो है कैरिकुलम जो है वो पढ़ाया जा रहा है। दूसरा जो है वो एक हमने SLO बेस्ड टीचिंग होती है, SLO बेस्ड एग्जाम होता है। पहले जो है घसे पिटे सवाल आते थे, जो कहते 3 साल में 5 साल का जो है पुराने पेपर दे 5 year सॉल्व कर papers दो, होते आपका थे, जो है बिल्कुल। मसला हल हो जाएगा। जी। तो अब जो है वो होता है कि थोड़ा टेक्निक चेंज की गई है, क्वेश्चंस को भी जरा ट्रिकी बनाया गया है, और इसलिए जो है उसमें सिर्फ जो है बच्चे की जो है वो इंटेलिजेंस भी देखी जाती है। राइट। सो सर बहुत तो जरूरी outcome है का कि क्या- जो पेपर what की is the टेक्निक perception? हो वो बच्चे को पूरे साल भी पढ़ाई जाए टेक्निक। अच्छा, हमें शगुफ्ता आलम ने जी, जी। ज्वाइन किया है, एक और तलबा है, इनके भी मार्क्स मैट्रिक में बहुत डिफरेंट आए थे और अभी तो काफ़ी पेपर्स में वो नल अवॉइड हो गया, फेल हो गई है। तो शगुफ्ता आप अपनी प्ली बताइए कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे मैट्रिक में ग्रेड बनी थे ना, और परसेंट 82.73 और जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट समझ नहीं आ रही शगुफ्ता, आपकी आवाज कट रही है। अगर आप एक बेहतर पोजीशन पे बैठ के हमसे बात करें तो हम आपका सवाल सुन सकेंगे। अच्छा, एक आपसे शफ साहब एक आपसे मजीद ये सवाल ये कि अब ये जो आपने कहा कि आप कॉपी भी दिखाने को तैयार हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये कह तो रहे हैं और अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स को चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर वो फ़ी देनी पड़ती है, फिर अगला स्टेप है, फिर कॉपी कब दिखाई जाएगी कब नहीं दिखाई जाएगी। तो इसको भी आप थोड़ा आसान बनाएंगे, ईजी बनाएंगे, ताकि कुछ फैमिलीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। और सर ये भी बताइए कि टोटल स्टूडेंट के घर पे तो हम नहीं जा सकते इतवार से, और जो डिसीजन प्रोफेसर्स की होती है, प्रोफेसर्स की जो है वो क्या कहते हैं कि एक अन्ना खुदारी होती है, पर उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आएँ बैठें इनके साथ, जो है वो जो है उसको जो रीचेक करते हैं हेड एग्जामिनर्स होते हैं, तो वो एक ही प्लेस हो सकती है। वो न मेरा घर हो सकता है, न स्टूडेंट घर हो सकता है, वो ऑफिस ही हो सकती है जहाँ पे बच्चों को तकलीफ होती है। जी। लेकिन बस एक जो है अच्छा वो शाह साहब remedy है, ये भी बताइए according to our कि ये भी सर बताइएगा कि इस दफा कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपको? जी कल तक तो जो है वो तकरीबन जो है वो 1023 जो है वो कंप्लेंट्स आ चुकी थी, रजिस्टर हुई थी हमारे पास सिर्फ। और ये अच्छा। कितना परसेंट बनता है? 1023। और ये कितना परसेंट बनता है ओवरऑल का? आई डोंट नो व्हाट द परसेंटेज ऑफ, लेकिन जितनी ही करा है उसके मुकाबले में कल तक जो है वो 1023 तक जो है फकत हमारे पास स्क्रूटनी फॉर्म जमा हुए थे, बच्चों ने Right. जो है वो अप्लाई किया है। सर तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों ने मुतालबा किया कि हमें पेपर्स दिखाए जाएं, तो आप ये 1023 बच्चों को पेपर्स दिखाएंगे, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, अगर वो स्क्रूटनी कमेटी ने अगर उसको कुछ चेंज किया तो वो बताएंगे, अगर नहीं किया एज इट इज रखने का कहा एग्जामिनर्स ने कि नहीं इसकी परफॉर्मेंस यही है, इसे नहीं बढ़ सकते इसके मार्क्स, तो फिर हम दिखाएंगे। राइट। और सर ये जो कॉपीज दिखाई जाएंगी वो गवर्निंग जो भी लोग हैं उनके सामने दिखाई जाएंगी, प्रोफेसर्स के सामने? जी हाँ, जो करेगा वो बताएगा ना। अगर और स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो अपने साथ एक टीचर लाए, कंसर्न टीचर,
वो ठीक है। उसके ट्यूशन टीचर हो, उसके कोचिंग सेंटर का टीचर हो, या उसके पेरेंट्स में से कोई सब्जेक्ट जानता हो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक नहीं जानता ना, तो वो Right. सब्जेक्ट कंसर्न कोई बंदा उसको सपोर्ट करने के लिए आए तो बड़े जी बिल्कुल। अच्छा, शगुफ्ता ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया, स्टूडेंट ही हैं और उनके मार्क्स भी बड़े मुख्तलिफ आए हैं और वो भी डिसअपॉइंटेड दिखाई दे। शगुफ्ता बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? आप तो फेल भी हो गई हैं 2-3 पेपर्स में, क्या हुआ? सर मेरी मैट्रिक में जो ग्रेड थी ना वो A1 थी A1 और थी। परसेंटेज जो था वो 82.73 और जब फर्स्ट ईयर की रिजल्ट आई ना तो उन्होंने तमाम पेपरों में मुझे रील कर दिया। तमाम पेपर्स में? जी 6 पेपर में। रियली? तो सर ऐसी, अब जब ऐसे तुलबा 96% पे के बाद उनको सारे पेपर्स में 83% फेल normally। कर दिया होगा, तो इसमें कोई आपको खुद खदशा नहीं है कि हाँ, ये बात। ये क्या हो रहा है? कुछ सिस्टम में लैगिंग है, कोई टीचिंग टेक्निक में लैगिंग वो- है? और सर ये तो फाइनल तो एग्जाम्स हमने है ना, तो इसीलिए मिड जो है टर्म्स भी हुए होंगे हमारे भी इनके खदशे जो आते हैं। कॉलेज और स्कूल में। हमारे सर भी खदशे आते हैं, सर मिड टर्म्स भी तो होते हैं ना, हमारे मिड भी टर्म्स खदशे आते में हैं, भी जिस पता वजह से चलता है हमने कि स्टूडेंट्स की क्या जो है ये तैयारी कमेटी है। बनाई है ताकि वो जो है, जी हाँ, वो खदशात हमारे भी हैं, तो इसीलिए हमने कमेटी मैंने बनाई है ताकि जो है उसकी रेमेडी का भी जो पता चले, और अगर कहीं पे जो है वो लूप होल है तो उसको भी जो है हम जो है कवर कर सकें। और 1000 से ज्यादा जो ये नंबर है आपके लिए भी तशवीश की बात है ये, क्योंकि बहरहाल बहुत बड़ी तादाद है ये। अच्छा शगुफ्ता, आप बताइएगा कि आप देखना चाहती हैं अपने पेपर्स, और आप आई एम श्योर 83 के बाद तो पूरी फैमिली शॉक में होगी कि ये 93 से जी, बिल्कुल। 6 पेपर्स फेल कैसे हो गई। इसमें तो एक आपकी सवाल मिड नहीं टर्म है, की तैयारी बिल्कुल, कैसी बिल्कुल। थी, और क्या मिड टर्म जैसा ही पेपर आपको फाइनल में नजर आया? जी बिल्कुल वैसे ही पेपर मुझे नजर आया। और हमारी कॉलेज में ना एग्जाम टेस्ट होती है ना, पहले बोर्ड से पेपर देने से जो टेस्ट होती है उसमें ये पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, उसमें हमारी पेरेंट्स को बुलाया जाता है जी। और फिर हमारे बारे में डिस्कस किया जाता है कि कैसे पढ़ाई में स्टूडेंट कैसे हैं, ठीक है या गलत है। Right. तो इत्तेफाक ऐसी थी ना मैम कि मैंने जो तैयारी करके गई थी वही सब आया था, और मैं तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती थी कि मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद इतना गंदा रिजल्ट आएगा। ये तो यानी कि समझ आइए कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक सबक है। राइट। तो आपको कॉपीज दिखाई जाएंगी, आप इससे मुतमईन हैं? अब कोई एहतजाज वगैरह या इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, वो भी इस मसले को हल करना चाहते हैं। जी मैंने स्कूटी फॉर्म सबमिट करवा चुकी हूँ। उन्होंने फीस लिया था 3000 ना। 3000, ठीक है। पेपर चेकिंग के 3000 है। जी तो तमाम पेपर में उन्होंने फेल किया है ना मुझे। अच्छा, और अच्छा सर ये शर्फ साहब ये बताइएगा कि ये कितनी फीस, 3000 फीस है पेपर चेकिंग के लिए, और अगर दिखाना यानी कोई ये कहे कि मेरी कॉपी दिखा दे तो उसकी अलग फीस होगी? नहीं, उसकी अलग फीस नहीं है। वैसे जो है फेस सब्जेक्ट जो है वो बोर्ड के रूल्स मुताबिक 1000 थी, जिसको मैंने 50% कम करके ठीक। जो है वो 500 पर सब्जेक्ट जो है वो स्क्रूटनी फी रखी है, लेकिन पेपर दिखाने की फीस नहीं होगी। राइट। तो जी नाजरीन, हम आपको ये हमारा जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को सेटिस्फाई करें। जी ये और बिल्कुल आप इसको सही जो कह रहे हैं, है और आपने कोई जो अभी remedy निकालें इसके आपने लिए। खुद ये कहा है यहाँ जी। पे कमेंट भी किया, और बड़ी अच्छी बात है कि आप पेपर्स भी दिखाएंगे उनको अगर वो ताकि मुतमईन इस पर clarity होते हैं, हो क्लैरिटी हो जाए। बहुत शुक्रिया शरफ अली शाह साहब, कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड हमारे साथ है, और वो ये बता रहे थे कि कमेटी बना दी गई है, तलबा को मुतमईन रहने की ज़रूरत है। अगर किसी के कोई शुबा शुबहात में कोई कंप्लेंट्स हैं वो आकर रजिस्टर कराएं। एक पूरा चेकिंग का अमल होगा, पूरी टीम चेक करेगी, दोबारा से रीचेक करेगी पेपर को, और उसके बावजूद अगर तलबा मुतमईन नहीं होते हैं तो उनको उनकी कॉपी भी दिखाई जाएगी। हमारे साथ शगुफ्ता आलम भी थी, ज़हरा हनीफ भी है। ज़हरा, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और हम आप इस बात पे यकीन रखें कि 365 पे हम कोशिश करते हैं कि हमारी यूथ के, हमारी फीमेल एम्पावर्ड विमेन के हम इश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आएँ। तो जनाब शगुफ्ता और ज़हरा, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।